प्रेटी श्योर दिस विल, आप सबको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा इसको सुनने के लिए। एंड मैं आज आप लोगों को एटलीस्ट एक चीज तो इसमें आप नया लेके जाओगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद वो चीज पता नहीं होगा, बाकी चीजें आप कहीं ना कहीं पे सुने होंगे। ओके, सो लेट्स रिविजिट। बिफोर दैट लेट मी क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स। एंड मैं जब, बिकॉज मैं इतना स्ट्रांगली इसको बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसके ऊपर इतना रिसर्च किया, मेरा खुद के ऊपर रिसर्च किया और मेरे क्लाइंट्स के ऊपर रिसर्च किया, और इसके बेसिस पे मैंने वो 3 आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आप उस आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा व्हाट दीज स्टेटमेंट्स आर सेइंग। कोलेस्ट्रॉल डज नॉट गिव यू हार्ट अटैक। ओके, 75% of cholesterol required by our body is made by our liver. You only get 25% of cholesterol from your food. सो अगर बॉडी 75% कोलेस्ट्रॉल अपने अंदर बना रहा है तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बैड हो सकता है? ओके, इट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। We call it fat, we call it lipid, we call it cholesterol. It's the same thing. 65% of your brain is made out of cholesterol. So it requires a continuous supply of fatty acids as a fuel. Yes, glucose is required. इतना सा चाहिए, इतना सा, और अगर नहीं दोगे तो बॉडी बना लेगा उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस करके। The primary composition of all your hormones, that includes your sex hormones, which drives your entire lifestyle, everything, you know, the testosterone, because those are the major, your growth hormone is HGH, IGF, your testosterone, your estrogen, progesterone, plus your mood enhancing hormones like serotonin, your oxytocin, and all those endorphin. All the hormones are cholesterol, fatty acids. We have trillions and trillions of cells in our human body. All the cell membranes are cholesterol. Okay, because why they are cholesterol? Because the communication happens best among the lipid. The 4 most essential vitamins for our survival, A, D, E, K, are all fat solubles, right? Cholesterol is essential for prostaglandin formation. Prostaglandin, how many of you know this? I think I had touched this during the binge course thoda sa. Prostaglandin is body's natural healing mechanism. इसका एक एग्जांपल बताऊंगा जो आप कोरिलेट कर सकते हो। जब एक एक्सटर्नल इंजुरी होता है आपका, उसके बाद वो घाव सूख जाता है। जब सूख जाता है उसके बाद आखिरी में क्या होता है, एक ब्राउन कलर या डार्क ब्लैक कलर का एक पपड़ी निकलता है, आप उसको निकाल के फेंक देते हो, राइट? एंड देन द घाव पूरा हील हो जाता है, भर जाता है। You know what, that black thing or the dark brown thing you just removed, which ensures that yes, it has healed completely, that is the very first layer of cholesterol which has arrived at the place of your injury. And this is all about the external injury. The same thing happened inside your body when जब internal injury होता है, और internal injury होता है आपका inflammation से। सो हार्ट अटैक जो होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का हम कल्प्रिट बनाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली उसको हील करने गया था। अब यह अलग बात है कि आपने इतना गंदा आया हुआ है, इतना ज्यादा इन्फ्लेम्ड है, उसमें इतना प्लेक है, इतना कैल्सिफिकेशन है कि उसके लिए उसको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वहां पे जो गया था उसको क्लीनिंग करने, उसको अटेंड करने के लिए। इन द प्रोसेस आपका बाईपास भी क्लॉक करके रखे हो तो हार्ट अटैक आता है, राइट? तो जस्ट without understanding why that gentleman was there, we started blaming cholesterol for heart attack, right? So that is the problem. Prostaglandin formation is healing healing mechanism of our body through cholesterol. Cholesterol are essential for maintaining the integrity of blood-brain barrier. Now, the 2 invisible culprit for cardiovascular ailments are hyperinsulinemia. ये मैं थोड़ा प्रोनाउंस करने में मेरे को थोड़ा मुश्किल होता है, hyperinsulinemia and chronic inflammation. Hyperinsulinemia is nothing but insulin resistance. तो हम यहाँ से insulin resistance बोलेंगे जो ज्यादा सिंपल है बोलने के लिए. So insulin resistance and chronic inflammation. And today I am going to touch upon a little bit about chronic inflammation, क्योंकि जब नेक्स्ट सेशन में हम डायबिटीज की बातें करेंगे वहां पे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बहुत ज्यादा डिटेल में बातें करेंगे, because that is what leads to this thing, high diabetes. and जब इसका एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साथ, वो फिर लीड करता है आपका कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट की तरफ. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेमेशन? ओके, अगर आप गूगल करोगे तो यही सारी चीजें आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है डिफरेंट ऑर्डर में मिलेगा, बट डेफिनेटली मिलेगा. शुगर, नंबर 1 कल्प्रिट फॉर इन्फ्लेमेशन.
because it creates the acidic body, and a acidic body is more vulnerable for disease, right? So क्या लिखा है उसको जरूरत नहीं है, आप जानो। अब जितना आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, आपको गूगल करोगे, पढ़ोगे, मैं आपको 1000 आर्टिकल्स दे सकता हूँ, वीडियोस मिलेंगे आपको, बट यस, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, शुगर इज द किलर, ओके, इट इज वन नंबर वन कल्प्रिट as far as inflammation is concerned। और बचपन से अभी तक कितना शुगर आपने खाया हो, तो आपने अपना बॉडी को कितना इन्फ्लेम किया है, क्या कभी आपने सोचा आपका इन्फ्लेमेशन टेस्ट करने के लिए? करो। दैट इज वन ऑफ द मेजर मार्कर फॉर योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आप कितने वल्नरेबल हो या कितना सही हो, यू नीड टू फाइंड इट आउट। Cooking oil, when I say cooking oil, it is particularly the refined oil, the hydrogenated oil, the white oils, right? Then comes your trans fat, जितने भी junk food है, जितना भी इंडस्ट्रियल फूड है, उसमें ट्रांस फैट है, जो फैक्ट्री मेड फैट है, विच आर नॉट सुइटेबल फॉर ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन कंजप्शन। डेयरी, डेयरी जब मैं बोल रहा हूं, प्राइमरीली इट्स डेयरी मिल्क, बट बाकी का जो है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको पनीर आप पहली बात तो आपको आपका इन्फ्लेमेशन लेवल पता करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बाकी और क्या क्या चीजें आप खा रहे हो। तो अगर सब कुछ छोड़ने के बाद भी आपका इन्फ्लेमेशन नीचे नहीं जा रहा है, एंड यू आर सीइंग मैं पनीर खा रहा हूं, मैं दही खा रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, मैं चीज खा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पे आपको इसको फिर कम करना पड़ेगा। बट एज लॉन्ग एज बाकी चीजों को छोड़ने के बाद आपका इन्फ्लेमेशन नीचे आ रहा है, बिकॉज प्राइमरीली सबको पनीर एंड चीज से इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। द प्राइमरी इन्फ्लेमेशन डेयरी प्रोडक्ट से होता है, वो है मिल्क, मिल्क एंड मिल्क ड्यू टू द लैक्टोज। क्योंकि जब चीज बन जाता है, जब पनीर बनता है, तो उसमें लैक्टोज काफी रिड्यूस हो जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, योर relationship, your body's relationship towards all the dairy product, you need to monitor. Many people, even उनको दही से भी बहुत ज्यादा bloating feel होता है, so but people do eat, so that is a problem. Then comes your meat. When we say meat, either it is the processed meat जो पैकिंग करके आपको बहुत प्रिजर्वेटिव डाल के रखा जाता है, या फिर अगर फ्रेश मीट है, खास करके ऑल द मीट जो कि आपका केमिकली फीडेड, जो जीएमओ फूड के साथ जो रेज किया जाता है, जो बेसिकली फार्मिंग हो रहा है, पर्टिकुलरली यूएस में बहुत ज्यादा ये इशू है। इंडिया में फिर भी जो मीट है वो बेटर है। हैविंग सेड दैट, इंडिया में चिकन इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, जिसको जीएमओ बेस्ड, सोय बेस्ड फीडिंग किया जाता है, एंड दोज आर द प्रॉब्लम। अल्कोहल, no rocket science, everybody knows it creates inflammation, but still people enjoy it. Refined grains, okay, when you remove the fiber, you remove all the complex things from that, and what remained is nothing but simple sugar, okay? And जब simple sugar होता है, चाहे वो चीनी से आए या चाहे मैदा से आए, it is inflammatory. And then of course artificial food additives जो आज की तारीख में इतना कलरफुल एंड टेस्टी यमी बनाने के लिए इसमें डाला जाता है, तो ये सारे हो गया। तो these are few as far as food is concerned. However, the message is something. Okay, before I give you the message, your stress is something. Okay, ये जो पहले दिखा है वो सारे food related है, but stress, you know, this is a silent intruder into our modern lifestyle. आप चाहो ना चाहो, it is coming, it will come. Important ये है to address it, to find it out, and आप कैसे क्या कर रहे हो. But yes, this is something which also increases inflammation in the body. Sleep deprivation. आपको यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगा, ह्यूमन इज द ओनली स्पीसीज हु कॉम्प्रोमाइज विद द स्लीप। हमें लगता है सोना टाइम वेस्ट है, बिलीव मी, सोना इज जरूरी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस वन और सेकंड सेशन, आई डोंट रिमेंबर, किसी में मैंने बताया था, स्लीपिंग इन द राइट स्लीपिंग विंडो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आप 10 घंटे 12 घंटे सो लो, सुबह 2 बजे 3 बजे से लेके अगले दिन में 12-2 बजे तक सो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रात में नहीं सो रहे हो, खास करके 12 बजे से पहले नहीं सो रहे हो, और सुबह 3-4-5 बजे तक नहीं सो रहे हो, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगा। सो दैट इज समथिंग। Here is the message. This is a 2006 WHO report. According to statistics from WHO, 12.9 million people worldwide died from some form of cardiovascular disease in 2004. Each year, the World Cancer Research Fund estimates that some 8 million people died from cancer. Heart disease and cancer, the deadly manifestation of chronic inflammation, are expected to remain as leading cause of death in developed countries for many years to come. Why the entire medical community is not talking about inflammation? Okay, today we have test in place जहाँ पे हम पता कर सकते हैं inflammation कितना है, and believe me, you will be shocked to know what should be the number, less than 1. But आप टेस्ट करो, अगर आप 1 से नीचे नहीं हो तो you are vulnerable. The bigger the number,
more vulnerable you are. Insulin resistance is a cardiovascular risk factor in humans. We all know about it. Medical science community को ये आज नहीं 50 साल पहले से मालूम है. But unfortunately, no one is talking about it. The reason is they do not have medicines to counter insulin resistance. As far as diabetes is concerned, this is the root cause. But शुगर को नीचे करने का दवाई उनको मिल गया, तो इसलिए वो ग्लूकोज को दवा नीचे करने के लिए इंसुलिन देते हैं या फिर मेटमॉर्फिन देते हैं या जो भी देते हैं, लेकिन इंसुलिन को नीचे करने का मेडिसिन अभी भी मेडिकल कम्युनिटी के पास नहीं है. सो दे डोंट स्पीक अबाउट दिस. एंड दिस इज अ स्लाइड. राइट हैंड साइड में जितने भी रेड फ्लैग्स है, ये सारे के सारे हाई ओमेगा 6 है, and they are highly pro-inflammatory. They increase inflammation. We have to understand ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ओके, ये साथ में ही मिलते हैं. जब आप ओमेगा 3 ढूंढोगे तो ओमेगा 3 जहां से आएगा वहां पे ओमेगा 6 भी आएगा, राइट. बट नेचर ने बना के दिया है कि हमेशा द मैक्सिमम रेशियो इज 1:1, या फिर ओमेगा इज 3 इज मोर, 6 इज लेस. हाउएवर जब प्रोसेसिंग होता है, ओके, तब ओमेगा, कुछ चीजों में ओमेगा 6 नेचुरली हाई होता है. ओमेगा 6 विच टू मच इज इंफ्लामेटरी. बट ओमेगा 6 अगर ओमेगा 3 से कम है तो बॉडी कैन मैनेज. वो ओमेगा 3 विल न्यूट्रलाइज दैट inflammation of omega 6. So in the left hand side, if you see, all those green things are high in omega 3 and they are anti-inflammatory. All the things which is in the right hand side are pro-inflammatory because they are too much of omega 6 in that. If you see sunflower oil, corn oil, soybean oil, so all these things. So all the खास करके जितने भी आपका refined oil है. Whereas if you see in the left hand side, flaxseed oil, salmon fish oil, cod liver oil, chia seeds, so all these things are high in omega 3 and they are all anti-inflammatory. ये सब क्यों हुआ? How many of you know about these 7 country studies by this great person who is Dr. Ansel Keys? Okay? अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको इसको गूगल करना है, रिसर्च करना है, यूट्यूब देखना है. वैसे you have to be aware of these things. मैं इसका डिटेल्स डिप डाइव नहीं करूंगा, खाली इतना मैं बताऊंगा. इन्होंने एक 7 कंट्री स्टडीज किया था 1950 में, जहां पे इन्होंने अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन को कन्विंस किया कि कोलेस्ट्रॉल इज द रूट कॉज और कल्प्रिट एज फार एज हार्ट डिजीज इज कंसर्न. तो कोई भी फूड जिसमें कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसको हटा देना चाहिए एंड उसके जगह पे हमें कार्बोहाइड्रेट पे शिफ्ट कर जाना चाहिए. एंड फ्रॉम देयर सिंस देन दिस इज द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो गाइडलाइन है फूड का. एंड इफ यू सी फूड पिरामिड का सबसे बेस में क्या है? ब्रेड, सेरेल्स, राइस, पास्ता. ओके, एंड जब से ये आपका मेन 60% ऑफ योर कैलोरी स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम दिस, तब से आपका कोलेस्ट्रॉल का कार्डियोवास्कुलर एपिडेमिक्स बढ़ने लग गया. अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स इट इज नॉट द ओनली कल्प्रिट, साथ में आपका स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड स्लीप एंड inflammation are there. But yes, food wise, how the food behavior changed, it started affecting our cardiovascular health and diabetes health. And then followed by fruits and vegetables. Vegetables, no worry, आप जितने भी खाओ, but fruits, yes, इतना रिफाइंड ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद अगर आप ये फ्रूट्स खाते हो तो ये सीधा सीधा आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर देगा. ओके, फॉलोड बाय रिड्यूस योर दिस थिंग प्रोटीन इनटेक एंड मिल्क इनटेक. ठीक है, दैट्स ओके. बट सबसे ऊपर में क्या हुआ? आप स्पेरिंजली आपको लेना चाहिए ऑयल एंड स्वीट्स. मतलब फैट अगर लेना है तो आप ऑयल से लो, कम लो, दैट्स ओके, बट कम लो एंड ऑयल लो एंड देन स्वीट्स. यस, स्वीट्स जीरो कर दो, स्वीट्स की जरूरत नहीं है. बट we reduced our fat intake from the saturated fat. Okay, so that is that. And due to this thing, in 1950, Dr. Ansel Keys were featured in that is his achievement. Okay, Times Magazine, and Times Magazine immediately cholesterol को villain बना के ये cover page था. ये 1950 का था. In the same Time Magazine 2014-15 में जब रिसर्चर्स ये कंफर्म कर दिया कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल डज नॉट कंट्रीब्यूट्स टू योर हार्ट हेल्थ और कार्डियोवास्कुलर दिस थिंग, द सेम टाइम्स मैगजीन 1950 में ये पब्लिश किया था एंड 2014 में एंड 2015 में स्टार्टेड प्रेजिंग कोलेस्ट्रॉल. सो इफ यू गूगल व्हाट इज द नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड, यू विल फाइंड, सो दिस इज व्हाट, ओके, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट किलर इज हार्ट डिजीज. So this is again a statistics again taken from WHO का newsroom fact sheet से. So this is the graphical representation. यहाँ पे मैं hyperlink दिया हूँ, ये भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप पढ़ सकते हो उसको डिटेल्स में. ये तो सारा चीजें प्रॉब्लम की तरफ हो गया. हम अभी सॉल्यूशन की तरफ बातें करते हैं. ठीक है, 1998 3 gentlemen, 3 doctors from
US got Nobel Prize. And do you know what for? For discovering something, nitric oxide. Nitric oxide can heal your cardiovascular health. आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, आपका हार्ट अटैक से निकाल सकता है. एंड बिलीव मी, इट इज देयर इनसाइड आवर बॉडी. अनफॉर्चुनेटली वी वेयर नॉट नोइंग दिस, और या फिर हमें अगर पता था, उसका साइंस नहीं पता था, सो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे. ओके, तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपको कहां से मिलता है? थ्री 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 प्रोसेस बॉडी के अंदर है जहां से बॉडी बहुत ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा कर सकता है. एंड बिलीव मी, नाइट्रिक ऑक्साइड हैज द पावर टू रीजनरेट योर कोलेटरल बाईपास आर्टरीज. आप लोगों को पता नहीं होगा, आप अगर नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करोगे तो आपका बॉडी अपने आप कोलेटरल्स बनाएगा जहां पे पॉसिबिलिटी उसको लगता है कि चोक हो सकता है. राइट? तो इफ यू रिमेंबर लास्ट सेशन हमने बात किया था, एक्सरसाइज करने से एंटी ग्रेविटी मसल को एंगेज करोगे, जो सोरनेस होता है वहां पे एक बाई प्रोडक्ट निकलता है नाइट्रिक ऑक्साइड. सो मसल एक्सरसाइज से नाइट्रिक ऑक्साइड आता है. तो दैट वी हैव सीन. सेकेंड, eating raw vegetables. The more raw vegetables you will chew, वो सलाइवा के साथ मिलेगा और वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होगा. लेकिन मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को ये चीज पता है, नाजल हमिंग, ओके, paranasal sinuses, that also produces 25 to 30% of nitric oxide. So all those people who know the power of chanting Om, what do? You take a deep breath and then you जब ब्रीद आउट करते हो, ओम. नाउ देयर इज नो रिलीजियन थिंग, ये सब चीज हटा दो. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू डू व्हेन यू से ओम. यू क्रिएट ए नाजल हमिंग. ओके, आप इसमें ओम बोल के करो या सिंपली ऐसे करो. राइट? सो नाजल हमिंग हैज दैट पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके, सो दिस वी हैड सीन. तो बेनिफिट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड डंप जो होता है आपका एक्सरसाइज से, इट कीप्स योर मसल स्ट्रांग, इट contributes to your cardiovascular system, it allows your blood vessels to expand, so blood pressure नहीं होता है. So these all we have seen. Best when we start 30 to 35 years age में आपका बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली प्रोडक्शन काफी होता है, बिकॉज इस दौरान हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, मस्कुलर एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है. तो 30-35 तक नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में हाई होता है, तो आप कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी आपका बेटर होता है. दैट इज व्हाट इज इट इज बीइंग अज्यूम्ड. हाउएवर आफ्टर 40 years there is a 50% less nitric oxide, because कहीं ना कहीं पे हम थोड़ा सा सेडेंटरी हो जाते हैं, and then we are so glued into our other daily activity, तो हमें खाना के साथ भी हमारा कंप्रोमाइज होता है. सो ऑल दिस थिंग्स आफ्टर 60 years there is 85% लेस नाइट्रिक ऑक्साइड. तो आप देखो, जो ज्यादा वल्नरेबल होता है टुवर्ड्स कार्डियक इश्यूज आर पीपल हु आर आफ्टर 60. कोई थंब रूल नहीं है, बट यस, दैट इज व्हाट जेनेरिक थिंग. वास्कुलर इफेक्ट्स ऑफ डाइटरी नाइट्रेट. सो डाइटरी नाइट्रेट से भी आपका काफी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होता है. सो हमें रॉ वेजिटेबल्स तो डेफिनेटली खानी चाहिए, स्प्राउट्स खानी चाहिए और चबा के खानी चाहिए. हाँ, नहीं खा पा रहे हो तो आप ग्रीन जूस की तरफ ध्यान दो, बट यस, द मोर यू कैन च्यू इट बेटर. कितना खाना चाहिए? नाउ दिस इज अ टिपिकल वेस्टर्न गाइडलाइन. सो दिस इज 7 cup. नाउ व्हेन आई से 7 cup, it is something like 400-500 grams a day. एंड जो सारे वेजिटेबल जिसको आप रॉ खा सकते हो, एक्सेप्ट एक वार्निंग यहाँ पे सिर्फ थायराइड वालों के लिए, जो खास करके जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है उसको आप रॉ मत खाना, क्योंकि उससे गाइट्रोजन निकलता है जो आपका थायरॉक्सिन को इनहिबिट करता है, उसको ब्लॉकेज करता है. अगर आपका थायराइड का इश्यूज नहीं है तो आप इसको रॉ या पार बॉयल या नियर रॉ सॉटे करके आप इसको खाना चाहिए. एंड द मोर यू ईट बेटर. एंड ऑल द वेजिटेबल जो आप रॉ खा सकते हो, लाइक गाजर, या फिर फॉर दैट मैटर वट एवर खीरा एंड टोमेटो, जो आप रॉ खा सकते हो तो उसको आप रॉ खाओ, और जो आप रॉ नहीं खा सकते उसका हल्का सा पार बॉयल या फिर सॉटे करके खाओ, बट डेफिनेटली आपको खाना पड़ेगा ये. And this is all about nasal humming. Here is a research article on nasal humming. इसका मैं लिंक भी शेयर करूंगा, आप इसको पढ़ सकते हो. It says particularly nasal humming increases 15-fold increase in nitric oxide production. उस मोमेंट में आपका बॉडी जो बनाने का कैपेबिलिटी है उसका 15-fold इंक्रीज हो जाता है. So all the people जो हम एक्सरसाइज अगर नहीं कर पा रहे हैं, इतना रॉ वेजिटेबल्स नहीं खा पा रहे हैं, so this is something we should do more. So 98 Nobel Prize winner
what they said is, produced by endothelial cells of blood vessels. That is what they L-arginine is something, एक supplements होता है, इससे भी आपका nitric oxide boost होता है. ये generally fitness industry में people do take this. It dilates blood vessels, airways, and increase perfusion. So that is that, the conclusion that had come from those researches. Natural way to increase your nitric oxide is exercise, nasal breathing, aerobic, walk, cycling, swimming, और सबसे इंपॉर्टेंट है HIIT, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ट्रेनिंग, जिसमें आपका मसल का एंगेजमेंट भी होता है. अप टू 60 to 70% ऑफ ब्लॉकेज नीड्स नो इंटरवेंशन. ओके, क्योंकि बॉडी हैज द नेचुरल कैपेबिलिटी टू open up the collaterals. So if you see, this is a blocked artery. Okay, so हमारा बॉडी सर्वाइव कर सकता है जब तक 33% which is like near 70% तक ब्लॉकेज को हम बॉडी मैनेज कर सकता है. ये ब्लॉकेज नहीं माना जाता, बॉडी कैन रन इट. ओके, दिस इज व्हाट इज कोलेटरल. अगर इट इज लाइक एक बढ़िया सा हाईवे है, लेकिन अगर ये हाईवे डैमेज होने लगा तो बिफोर यू टेक अप द रिपेयर आप साइड का रोड बनाते हो. बिलीव मी, बॉडी भी वही करता है. बॉडी यहाँ पे इसको रिपेयर तो कर नहीं पाता है, बट बॉडी आपका इसको इतना बढ़िया खोल देता है. एंड दिस हैपेंस ओनली व्हेन आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बॉडी में बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो दिस इज अ टिपिकल ब्लॉकेज, बट नेचुरल बाईपास ओपन हो गया है. दिस इज हाउ बॉडी नेचुरली टेक्स केयर ऑफ आवर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. ठीक है, सो दिस कैन ओनली हैपन व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड इज एनफ. सो नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करने के लिए आपको करना क्या है? आपको HIIT या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना है, एक्सरसाइज एंगेजिंग ऑल योर मसल्स करना है, हमिंग, नाजल ब्रीदिंग करना है. नाउ the extreme low carb diet is called keto diet, which everybody should not do. Rather, let us remove this keto word. It is called LCHF, low carb, high fat or healthy fat. And then we will be covering a lot about fasting, how fasting contributes to your nitric oxide as well. वो हम बातें करेंगे जब हम therapeutic fasting की बातें करेंगे. But these are the things to improve your nitric oxide, which ultimately boost your, the collateral developments. So that is what is mentioned. Nature has given us everything in excess to meet any adverse situation. We can survive up to 70% of damage. So start taking care of yourself before it reaches that 30%. So here is a Google search again. How long does collateral circulation last? So study published in 2007 of more than 800 men and women with stable coronary artery disease. 89% of those with good collateral circulation were still alive after 10 years of follow-up, compared to with 71% of those with low collateral flow. This is a video I will be sharing and you all should watch this. Okay. So Dr. Ford Brewer ka, how I reversed 20 years of arterial plague. He's a doctor. Okay. एक emergency response doctor थे. But जब तक वो मतलब being a non-obese person, but फिर भी उनका आर्टेरियल प्लेग आया था. बट वो मेडिसिन के साथ गए, बट उससे वो प्लेग बढ़ने लगा और उनको 2-3 स्टेंट लगा. So that is what he said. And then when he learned about the power of nitric oxide and food and exercise, what he could achieve in his next part of life, that's what he is explaining in this particular video, and we should hear him out. So finally, the recommendations are, these are general recommendations: nasal breathing, exercise, HIIT, eat nitrate high food, go on a low carb diet, वाटर फास्टिंग करो. 16 से 18 घंटा फास्टिंग, मतलब स्ट्रिक्ट रमादान फास्टिंग जैसा नहीं होना चाहिए. उसमें आप पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, ग्रीन स्मूदी ले सकते हो, एंड green herbal tea वगैरह ले सकते हो. If you start this at the age of 35 years age, then there is 95% chance you will live a long and healthy life without any disease. So with that, I am concluding today's session,